ओके जरा अपना कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर लो सारे। कैन यू हियर मी? Yes, sir. कैमरा ऑन कर। कैमरा ऑन जल्दी से। कैमरा ऑन। लेट मी शेयर द स्क्रीन। अभी हमने कहा था कि अगर कोई नॉर्म इनर प्रोडक्ट से आया है तो वो पैरेललोग्राम लॉ को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। सो मैंने कहा जो LP है, चलो मैं लिखता हूँ एज एन एक्सरसाइज, LP is an inner product space only if P is equal to 2। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ या सोल्यूशन हम करेंगे लेट E1 equal to 1 0 0 and E2 be equal to 0 1 0 0. Of course they belong to all P's, they are summable, belong to LP and small LP. Then what would you get? E1 plus E2 किसके बराबर होगा? That would be 1 1 1 1 0 0 0। ये भी LP में होगा। E1 minus E2 किसके बराबर होगा? It would be 1 minus 1 0 0। And norm of E1 plus E2 अगर मैं कहूँ pth norm बराबर होगा 1 raised to power modulus of 1 raised power P plus modulus of 1 raised to power P plus 0 raised to power P plus zeros only whole raised to power 1 by P. That is just equal to 2 raised to power 1 by P for any P greater than or equal to 1. And of course norm of E1 minus E2 P जो है वो बराबर होगा 1 raised power P plus minus 1 mod raised power P, and as you can see whole raised power 1 by P, that's equal to 2 raised power 1 by P again, right? So if LP is an inner product space, is an inner product space यानी इसका नॉर्म अगर इनर प्रोडक्ट से आया होगा then क्या, norm of E1 plus E2 का स्क्वायर plus norm of E1 minus E2 का स्क्वायर should be equal to twice norm of E1 cos pth norm pth norm pth norm। यहाँ लिखा मैंने pth norm पिछले वाले पेज, हाँ बिल्कुल, स्क्वायर प्लस norm of E2 का pth स्क्वायर। But that means which implies, ये तो हमें ऑलरेडी पता है ये क्या है, ये है 2 raised power 1 by P। जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा यानी 2 raised power 1 by P का होल स्क्वायर प्लस 2 raised to power 1 by P का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए 2 into 1 plus 1, that's equal to 4, which implies that 2 raised power 2 by P plus 2 raised power 2 by P should be equal to 4. Now which is true? ये तभी ट्रू होगा only if, और तो चारा ही नहीं, P is equal to P जब 2 होगा तभी ये 4 के बराबर होगा, वरना तो सवाल ही पैदा नहीं। Hence LP is an inner product space only if P is equal to 2। हम और भी चेक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल C01 अंडर सुप नॉर्म, C01 इसी क्राइटेरिया से अंडर सुप नॉर्म, जो इसका नेचुरल नॉर्म, नेचुरल नहीं कह सकते, एक नॉर्म है जो हमने जिसके अंडर ये कंप्लीट है, सुप नॉर्म इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। वही
हम कर सकते हैं कि इसका नॉर्म जो है, now norm of x जो सुप नॉर्म है is equal to supremum t belonging to 0 1 x at t in mod for all x belonging to c01, that is the continuous function. Now let x at t be the identity not identity map. It is equal to t for all t, and y at t be another function that be given by 1 by t. Again, of course, they are continuous functions. If they are defined like this, then x equal to xt and y equal to yt both belong to C01 because they are continuous functions. And how about their norm? What is the supremum? Now, norm of xt infinity is norm of t supremum t belongs to 0 1 mod of t. वो क्या होगा? Of course 1 होगा ना 1. सुप्रीमम इसका ढूंढ रहे हैं over this interval. And how about norm y? Norm y at t का infinity would be equal to supremum over t belongs to 0 1 mod of 1 minus t, right? It will be 0. 0 होगा? हाँ सर. अरे क्या कह रहे हो? 0 कैसे होगा? अगर मैं t को हाफ लूंगा, अगर मैं t को 0 लूं तो ये तो 1 आ जाएगा, है ना? सबसे बड़ा वैल्यू इसका क्या होगा? 1 ही होगा, है ना? ओवर दिस इंटरवल कि नहीं होगा? ये एक्चुअली है इस तरह से. ये मान लो 0 1 है. अगर मैं मैप करूंगा पहली फंक्शन को x t इक्वल टू ये है, यानी इस इंटरवल पे सबसे वैल्यू इसका ये होगा 1. उसका मॉडुलस हमें देखना है. और अगर 1 माइनस टी होगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 माइनस टी मीन्स पहले तो तुम्हें लेना है t इज इक्वल टू माइनस टी, यानी ये वाली फंक्शन ये इस तरह से होगा. इसका जो वैल्यू होगा that would be actually 1 ही होगा. 1 होगा इसका. नहीं, मुझे लगता है इसका होगा मैक्सिमम. निकाल सकते हैं, इसमें क्या है, हमें इसका मैक्सिमम चाहिए. सपोज f of t is equal to mod of 1 minus t, but this can be written as 1 minus t because t is supposed to be less than equal to 1. So अगर मैं इसको differentiate करूं तो क्या मिलेगा? It will be 1. So it is positive. So it's a decreasing function. जैसा कि मैंने इसका बनाया, decreasing function है तो इसके values कम कम होंगे, है ना? So as t goes from 0 to 1, ये decrease होगी कि increase होगी? Decrease होगी. यानी इसका सबसे बड़ा वैल्यू होगा 0 पे, that's equal to 1. यानी मेरा ठीक था अंदाजा, है ना? ये सबसे बड़ा वैल्यू है ना इसका, ये 1. 0 पे ही ये अटेन करेगी आपका मैक्सिमम, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन. Nevertheless, you can always do calculus. So once I have done that, how about x plus y? X plus y would be x at t plus y at t. वो होगा simply 1 because it would be t plus 1 minus t, that is just equal to 1. And how about x minus y? That would be x minus t at y minus t. That would be t minus 1 minus t. That would be 2t minus 1. अब अगर मैं इनका नॉर्म ढूंढना चाहूँ, norm of x plus y infinity is a constant function, so that's just 1. इसमें तो कुछ करना नहीं. And norm of x minus y infinity would be equal to, जल्दी से, p supremum t belongs to 0 1 modulus of 2t minus 1. What would be that? Can you guess? इसका मैक्सिमम क्या होगा? 0 पे तो इसका 1 होगा, 0 पे इसका 1 होगा, तो वो भी 1 ही आएगा, I think, है ना? नहीं, 1 पे इसका 1 आएगा, है ना?
पहले हम फिर से वही कर सकते हैं, बिकॉज कर सकते हैं क्या, जैसे 2t माइनस 1, चूंकि t जो है वो लेस देन, चलो डजंट मैटर, लेकिन हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको ग्राफ बनाएंगे बिकॉज इट्स अ लीनियर मैप, तो इट वुड बी जस्ट अ लाइन। t इक्वल टू 0 पे ये -1 है, यहाँ आ जाएगा, और t इक्वल टू 0 पे ये -1 है, t इक्वल टू 1 पे ये 0 है, तो इस तरह से ये बन रहा है ग्राफ इसका, और इसका मैक्सिमम क्या है, मॉडुलस ऑफ -1, क्योंकि इसका हमें देखना होगा ये जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है -1, क्योंकि हम मॉड ले रहे हैं तो वो -1 ऑफ मॉड तो 1 ही होगा। एंड नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का इंफिनिटी का स्क्वायर would be equal to 1 square plus 1 square is equal to 2, 2 and twice norm of x square infinity plus twice norm of y square infinity वो किसके बराबर है, that is 2 into 1 plus 2 into 1, that's equal to 4, right, which is not equal to, यानी पैरेललोग्राम लॉ जो है वो सेटिस्फाई, यानी ये जो नॉर्म है ये इनर प्रोडक्ट से नहीं आता, so therefore sup norm on C01 is not induced by an inner product. ये शोर कैसा आ रहा है इसमें, ओके तो अभी तक हमने ये पैरेललोग्राम लॉ, उससे हमें पता चलेगा कौन सा नॉर्म इनर प्रोडक्ट से आ रहा है, इंड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो इनर प्रोडक्ट से इंड्यूस हो रहा है तो उसका क्या बोलते हैं, उसका जो है ना, उसका नॉर्म इनर पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करेगा। नाउ लेट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, सो इसके बाद आगे बढ़ने से पहले द क्वेश्चन इज, अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट है उससे हमें मिलता है नॉर्म डिफाइंड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ xx, ठीक है ना, और साथ में ये नॉर्म जो सेटिस्फाई, अगर इस तरह से नॉर्म है तो ये पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करता है, एंड पैरेललोग्राम लॉ इज satisfied by this law. अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं क्या उल्टा भी पॉसिबल है, कैन वी डिफाइन an inner product with the help of a norm? The answer is yes. Yes, if the norm satisfies, यानी इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है, अगर कोई नॉर्म पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करता है तो उसकी मदद से हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, if the norm satisfies the inner product. अब ये जो है ये सिंपल है, लेकिन क्या बोलते हैं लंबा चौड़ा है, इसका प्रूफ थोड़ा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं एक नॉर्म को विद द हेल्प ऑफ एन इनर प्रोडक्ट, तो वो हमारा होगा नेक्स्ट। पहले हम स्टेट कर सकते हैं उसको, स्टेटमेंट क्या है उसका, स्टेटमेंट मुझे ढूंढना पड़ेगा एग्जैक्टली, इट्स कॉल्ड जॉर्डन वॉन न्यूमैन लॉ भी कहते हैं इसको हम, और देयर इज समथिंग कॉल्ड पोलराइजेशन आइडेंटिटी। एज यूजुअल मेरे नोट्स पे क्या बोलते हैं बिखरे हुए होते हैं बहुत ज्यादा, यहाँ से कुछ मिलता नहीं है इसीलिए, तो मुझे याद ही रखना पड़ता है ज्यादा। एनीवेज
ओके ओके ओके, इसका पेज कहाँ है? 1 2 पेज नंबर 2। हाँ, तो चलो हम इसको कल करेंगे, वैसे भी आज होगा नहीं और तुम्हें नमाज भी पढ़नी होगी। तो आई स्टॉप शेयर एंड लेट्स एंड इट हियर। फिर उसको एंड करते हैं, कल हम करेंगे वो वाला थ्योरम।